Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are fine, healthy, safe in your homes and your studies are also going well. And if you're watching the videos regularly, then you must be knowing that in my previous video, I have started a new unit of your Superb English Grammar book. Children, the unit is about comprehension passage. As you can see the name, comprehension passage. So in this unit, what we are going to do and what we have started the practice of comprehension passages. I have told you कि comprehension passages में क्या होता है कि कोई poem हो सकती है, कोई एक पैराग्राफ हो सकता है, कोई शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, and what you have to do, you have to read that story, you have to read that passage or poem thoroughly, you have to comprehend that, and then there will be an exercise based on that passage. So you have to solve that exercise. After reading the passage carefully, thoroughly, you have to solve the exercise. That exercise may have question answers, may have choose the correct options, true, false, fill in the blanks, anything related to that passage that you have to solve. Children, comprehension passages are of two types. One is seen comprehension passage and another one is unseen. Seen passage is that which you have already done, which you have already seen. It can be from your main textbook. It can be the passage that you have done in the class. It can be any passage that you have already seen or done. Unseen passages are those passages which are not known to you. आपकी कोर्स बुक का नहीं होगा, आपको क्लास में पहले से नहीं करवाया गया होगा. It can be anything that is not related to your text or related to your class work. Okay. Children, in the past video, I have done a poem with you. एक poem हमने किया था और उस पे based हमने exercises solve की थी. And the name of that poem was I saw a ship a sailing. ये वाली poem हमने किया था और इसको समझने के बाद हमने इस पर based जो exercise था उसको भी हमने complete किया था. ठीक है. तो आज जो है वो हम क्या करने वाले हैं, आज एक छोटा सा पैराग्राफ है, स्टोरी शॉर्ट ऑफ यू कैन से, तो एक छोटा सा पैराग्राफ है दैट यू हैव टू रीड अलोंग विद मी एंड देन आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. हर पैसेज के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से पहले लिखा होता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन answer the following questions or fill in the blanks or choose the correct options. It can be anything. Okay, so it is written here that read the passage and tick the correct options and tick the correct options. This is the question. Okay, read the passage and take the correct options. चलिए, पैसेज क्या है मैं आपके लिए लिख देती हूँ ये, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट पैसेज. अलादीन. व्हाट इज दिस? अलादीन. इसको क्या पढ़ेंगे हम? अलादीन. अलादीन वॉज अ पुअर बॉय. Aladdin was a poor boy. One day he found an old lamp. It was very dusty. It was very
dusty. He wiped the dust. He wiped the dust and rubbed the lamp to make it shine. To make it shine. Suddenly, a genie appeared from the lamp. It was very huge and horrible. It was very huge and horrible. It said, "My Lord, thank you for releasing me from the lamp. I am a genie. I am a genie. I can fulfill your wish. I can fulfill your wishes. What do you want? Children, I have written the whole passage which is given in your grammar book. Page number is 85. Page number 85 पर ये passage दिया हुआ. This passage is given on page number 85. You can look into your book or you can look on the board. I'm going to read this. I'm going to explain this passage, and you can either look into your book or you can look at the board. या तो आप डायरेक्टली बोर्ड पर देखिए या आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं. ठीक है. Aladdin was a poor boy. Aladdin was a poor boy. Aladdin एक लड़के का नाम है. ठीक है. Aladdin is a name. Aladdin कौन है? Was a poor boy. एक पुअर बॉय है, एक गरीब लड़का है. अलादीन कौन है? एक गरीब लड़का है, एक पुअर बॉय है. अलादीन इज अ नेम ऑफ अ पुअर बॉय. अलादीन वॉज अ पुअर बॉय. वन डे ही फाउंड एन ओल्ड लैम्प. व्हाट हैपेंड वन डे? एक दिन क्या हुआ? ही फाउंड एन ओल्ड लैम्प. उसको एक दिन क्या मिला? एक दिन उसे एक पुराना लैंप मिला. दिया जिसको बोलते हैं ना, दीपक जिसको बोलते हैं वो. तो एक दिन उसे एक पुराना
दीपक पुराना लैंप मिला। वन डे ही फाउंड एन ओल्ड लैंप। उसे क्या मिला? एक ओल्ड लैंप मिला। लैंप कैसा था? ओल्ड। हाउ वॉज द लैंप? लैंप वॉज ओल्ड। ओके। इट वॉज वेरी डस्टी। और वो कैसा था लैंप? उस पर बहुत सारी धूल जमी थी। डस्टी मतलब जिसके ऊपर डस्ट होता है उसको बोलते हैं डस्टी। जिसके ऊपर बहुत डस्ट होता है, जिस चीज के ऊपर बहुत डस्ट लगा होता है उसे हम कहते हैं डस्टी। तो लैंप जो कैसा था? लैंप बहुत डस्टी था, पुराना लैंप था, काफी पुराना था और वो काफी उसके ऊपर काफी डस्ट था। इट वॉज अ डस्टी लैंप। लैंप कैसा था? डस्टी। ही वाइप्ड द डस्ट। जो वो उस लैंप के ऊपर जो डस्ट लगी हुई थी तो उसने ऐसे झाड़ दिया। वाइप मतलब उसको पोंछना, वाइप करना मतलब उसको पोंछना। तो उसने क्या किया कि डस्ट को उसने वाइप कर दिया, उसने पोंछ दिया। एंड रब्ड द लैम्प टू मेक इट शाइन। उसके बाद उसने उस लैंप को रगड़ा ताकि वो चमक जाए। पुराना लैंप था और उसके ऊपर काफी डस्ट था, तो उसने डस्ट को पहले पोंछा और फिर उसको लैंप को खूब रगड़ा ताकि लैंप शाइन करने लगे। लैंप को चमकाने के लिए उसने उस लैंप को रगड़ना शुरू किया क्योंकि वो डस्ट लगा हुआ था। सडनली अ जिनी अपीयर्ड। सडनली अ जिनी अपीयर्ड फ्रॉम द लैंप। सडनली, ये लिखा है सडनली अ जिनी अपीयर्ड फ्रॉम द लैंप। अपीयर मतलब निकलना, जहां से आ जाना, प्रकट हो जाना। ठीक है। तो जब वो उसने लैंप को रगड़ा तो अचानक पे, सडनली मतलब एकदम से उस लैंप में से एक जीनी प्रकट हो गया, एक जीनी निकल के आ गया। अब जीनी क्या होता है? जैसे हम जैसे भूत प्रेत की बात करते हैं तो जीनी भी एक तरह का ऐसा ही होता है। लैंप में से वो जिन, जिसको हिंदी में जिन बोलते हैं ना, चिराग का जिन, जैसे जिनी निकला। हाउ वॉज द जिनी? ये आपको समझ में है? सडनली अ जिनी अपीयर्ड फ्रॉम द लैम्प। जिनी कहां से निकला? लैंप में से। अगर पूछे लैंप में से कौन निकला? एक जिनी निकला। जिनी कहां से निकला? लैंप में से निकला। इट वॉज वेरी ह्यूज एंड हॉरिबल। अभी जिनी कैसे था? ह्यूज। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, जैसे एलिफेंट को बोलते हैं ना, एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल। वैसे ही जिनी भी बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा था। और हॉरिबल मतलब डरावना सा था। जिनी वॉज ह्यूज एंड हॉरिबल, बहुत विशाल और बहुत डरावना था। इट वॉज वेरी ह्यूज एंड हॉरिबल। नेक्स्ट, इट सेड। इट कौन है? जिनी है। जिनी ने कहा, जिनी ने क्या कहा? माई लॉर्ड, थैंक यू फॉर रिलीजिंग मी फ्रॉम द लैम्प। क्या बोला जिनी ने? माई लॉर्ड, थैंक यू फॉर रिलीजिंग मी फ्रॉम द लैम्प। उसने बोला मेरे आका, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लैंप से बाहर निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मतलब धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है। तो उसने माई लॉर्ड मतलब मेरे आका, मेरे मालिक। माई लॉर्ड मतलब मेरे मालिक। और हम क्योंकि ये अरेबियन नाइट्स की स्टोरी है तो मेरे आका बोलते हैं या मेरे मालिक। तो उस लैंप ने कहा कि मेरे लॉर्ड, मेरे मालिक, मेरे आका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लैंप से बाहर निकाला, इस लैंप से मुझे आजाद कराया। मैं इस लैंप में बंद था। ठीक है। तो मुझे इस लैंप से रिलीज करने के लिए, मतलब उससे निकालने के लिए, उससे आजाद कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम अ जिनी। मैं एक जिनी हूं, मतलब मैं एक जिन हूं। आई कैन फुलफिल योर विशेस। और मैं तुम्हारे कोई भी विश होगी, कोई भी तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी कोई इच्छा होगी, उसे मैं पूरी कर सकता हूं। आई कैन फुलफिल योर विशेस। तुम्हारी जो भी विशेस हुआ करेंगी उसे मैं पूरी कर सकता हूं। अगर तुम्हारी कोई विश हो या बहुत सारे विशेष हो, जो भी हो, आई कैन फुलफिल मतलब मैं उसे पूरी कर सकता हूं। वॉट डू यू वॉन्ट? आपको क्या चाहिए? वॉट डू यू वॉन्ट? जिनने क्या कहा? वॉट डू यू वॉन्ट। ये एक पैराग्राफ है किसी स्टोरी का।
आपने हो सकता है ये पूरी स्टोरी पढ़ी हो, है ना, अलादीन वाली स्टोरी और अलादीन एंड मैजिक लैम्प वाली स्टोरी में से ये एक पैराग्राफ लिया गया है, ठीक है। तो ये अब इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज होगी, ठीक है। मैंने आपको ये पूरा पैसेज पढ़ के और एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपसे जनरली पूछती हूँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय? व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय? अलादीन। हु वाज अलादीन? अलादीन वाज अ पुअर बॉय। अभी दो क्वेश्चन इसी लाइन से हो गए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय? अलादीन। सेकेंड क्वेश्चन क्या हो गया? हु वाज अलादीन? Aladdin was a poor boy. Second question, what did he find one day? What did Aladdin find one day? Aladdin को एक दिन क्या मिला? Aladdin one day he found an old lamp. One day he found an old lamp. या क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये यहाँ ठीक है इतना है। And how was the lamp? लैम्प कैसा था? It was dusty. The lamp was dusty. ठीक है। Why did Aladdin rubbed the lamp? अलादीन ने लैम्प को रब क्यों किया? पहले से पता था अलादीन को कि इसके अंदर एक जिन छुपा हुआ है? अलादीन को तो पहले से नहीं मालूम था। उसने रब क्यों किया? Why did he rub the lamp? तो लिखोगे ही रब्ड द लैम्प टू मेक इट शाइन, उसको चमकाने के लिए, क्योंकि वो जो लैम्प था वो पुराना था। तो पुराने लैम्प को चमकाने के लिए उसने क्या किया? उसको रब किया। वाई डिड ही रब द लैम्प? टू मेक इट शाइन। ही रब द लैम्प टू मेक इट शाइन, उसको चमकाने के लिए उसने रब किया। और जो डस्ट था उसको उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू विद द डस्ट? ही वाइप्ड द डस्ट। He wiped the dust. अच्छा, suddenly what happened? या who appeared from the lamp? Who appeared from the lamp? A genie appeared from the lamp. या from where did genie appear? From where did genie appear? तो आप बोल सकते हो genie appeared from the lamp. या what appeared from the lamp? What appeared from the lamp? A genie appeared from the lamp. दोनों चीज हो सकती है कि लैम्प से क्या निकला? लैम्प से जिनी निकला। या क्वेश्चन हो सकता है कि जिनी कहां से निकला? तो जिनी लैम्प में से निकला। दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको समझ में आए? दो क्वेश्चन हो सकते हैं ना, जिनी कहां से निकला या लैम्प में से क्या निकला। जिनी कहां से निकला? लैम्प से निकला। या लैम्प से क्या निकला? लैम्प से जिनी निकला। जिनी कैसे था? हाउ वॉज द जिनी? कैसा था जिनी? जिनी वॉज ह्यूज एंड हॉरिबल। हाउ वॉज जिनी? जिनी वॉज ह्यूज एंड हॉरिबल। एंड व्हाट डिड जिनी से? जिनी ने क्या कहा? निकलने के बाद जिनी ने क्या कहा? ही सेड थैंक यू माई लॉर्ड फॉर रिलीजिंग मी फ्रॉम द लैम्प। व्हाट डिड ही से? ही सेड thank you my lord for releasing me from the lamp. I am a genie. उसने क्या कहा? उसने अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया? He said I am a genie. And what can genie do? क्या कर सकता था? Genie can fulfill wishes, any wishes. Genie can fulfill any wishes. तो ये पैराग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते थे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज दैट इज गिवन। अब इसमें जो एक्सरसाइज दी है उसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। Okay, let's see the exercise.
एक्सरसाइज में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला एक्सरसाइजेस हैं। तो देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट वन इज हु वॉज अलादीन। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अलादीन, अलादीन कौन था। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, नंबर यहां नहीं डाला है, सिंपली लिखा हुआ है a genie, a boy, a rich boy। ओके, हु वॉज अलादीन, अलादीन कौन था। और ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। जिनी, क्या अलादीन एक जिनी था, क्या वो एक पुअर बॉय था, या वो एक रिच बॉय था। कौन था अलादीन। चिल्ड्रन, वी जस्ट डिस्कस्ड दिस। क्या कौन था अलादीन। अलादीन वॉज अ पुअर बॉय, अलादीन एक गरीब लड़का था। अलादीन वॉज अ पुअर बॉय, ठीक है, अलादीन एक गरीब लड़का था। नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड वन डे। What did he find one day। एक दिन अलादीन को क्या मिला। What did he find one day। ऑप्शन क्या है हमारे पास, an old lamp, a gold chain, a new lamp। What did he find one day। एक दिन अलादीन को क्या मिला। ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, एन ओल्ड लैम्प, अ गोल्ड चेन और न्यू लैम्प। हमें पता है ना कि अलादीन को क्या मिला था। अलादीन को मिला था एन ओल्ड लैम्प, उसे एक पुराना लैम्प मिला था, उसे एक पुराना लैम्प मिला। ही फाउंड एन ओल्ड लैम्प, वन डे ही फाउंड एन ओल्ड लैम्प। What appeared from the lamp। What appeared from the lamp। अब हमें बताना है कि उस लैम्प में से कौन निकला। वो जो लैम्प मिला था उसको, उस लैम्प में से कौन निकला। और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शन है अ स्मॉल जिनी, अ स्मॉल जिनी। दूसरा ऑप्शन है नथिंग, कुछ नहीं निकला, ठीक है। और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, अ ह्यूज जिनी। What appeared from the lamp। उस लैम्प में से क्या निकला। एक छोटा सा जिनी, कुछ भी नहीं, या एक खूब बड़ा सा जिनी, अ ह्यूज जिनी। कौन निकला लैम्प में से, एक ह्यूज जिनी, एक बड़ा सा ह्यूज जिनी निकला। लैम्प में से कौन निकला, एक ह्यूज जिनी। लैम्प में से एक ह्यूज जिनी निकला। नेक्स्ट है हमारा Which of these is a verb।
which of these is a verb? इनमें से कौन सा वर्ब है, मतलब एक्शन वर्ड है या हम बोलते हैं डूइंग वर्ड है। आपको जो वर्ड्स दिए जाएंगे ऑप्शन, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला वर्ब है या एक्शन वर्ड है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? मेक, लैम्प या वॉट। इसमें से कौन सा वर्ब है? मेक मतलब बनाना, लैम्प दिया जो दीपक होता है, और वॉट कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन। सो वॉट इज अ क्वेश्चन वर्ड, लैम्प इज अ नाउन, सो मेक इज वर्ब। कुछ काम करना, कुछ चीज बनाना, उसे कहते हैं मेक। सो मेक इज अ एक्शन वर्ड, मेक इज अ वर्ब। ठीक है, ये हमने 4 किए, अभी कुछ और हैं उसे कर लेते हैं। लेट्स डू Children, you have to see now page number 86. आपको पेज नंबर 86 देखना है। Now on page number 86 is another one. 4th वाला भी पेज 86 पे था, 5th वाला भी। Circle the antonyms. Antonyms मतलब opposite words. Antonyms of the given word. Circle the antonyms opposites of the given words. कौन से वर्ड्स हैं जिसका हमें ऑपोजिट वर्ड्स देखना है? पहला वर्ड है हमारा रिच। रिच का हमारे पास ऑप्शन दिया है डस्टी, लैम्प या पुअर। सर्कल द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मैंने बताया, एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट। किसका ऑपोजिट आपको बताना है? रिच। रिच का ऑपोजिट क्या होता है? चिल्ड्रन, रिच का ऑपोजिट होता है पुअर। ऑपोजिट ऑफ रिच इज पुअर। नेक्स्ट वर्ड इज टाइनी। टाइनी का ऑपोजिट क्या होता है? स्मॉल, हॉरिबल, ह्यूज। स्मॉल, हॉरिबल, ह्यूज। तो टाइनी का ऑपोजिट मतलब, टाइनी मतलब बहुत छोटा, टाइनी मतलब बहुत छोटा, तो बहुत छोटा का ऑपोजिट होगा बहुत बड़ा, ह्यूज। बहुत छोटा का ऑपोजिट बहुत बड़ा। ठीक है, अब है हमारा 6th क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज द सिनोनिम वाइट। चिल्ड्रन, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला। सेम मीनिंग वाला कौन सा वर्ड? वाइट का सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होता है? वाइट का सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होता है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? अपीयर्ड, क्लीन्ड एंड फुलफिल्ड। क्या है? फुलफिल्ड। चिल्ड्रन, वाइट का सिनोनिम होता है, वाइट का सिनोनिम होता है क्लीन। ओके, इसकी वाइट का सिनोनिम है क्लीन।
हमको ऐसे जो ऐसे बॉक्स बना है एक्चुअली यहाँ पर, तो हमें टिक लगाना है, इसमें सर्कल नहीं करना है, वी हैव टू टिक, हमें इसको टिक करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये आप देखो, ये आपको समझ में आया। सो चिल्ड्रन, ये हमने कर लिया, विच ऑफ दीज इज अ सिनोनिम ऑफ क्लीन। ये हमारा जो एक्सरसाइज था ये उस पैसेज से था जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे हमें पैसेज में से आंसर लिखना होता है। ऑल द आंसर्स वर देयर इन द पैसेज। जो भी हमारा क्वेश्चन था, जो भी हमारी एक्सरसाइज में हमें जो भी चूज करना था ऑप्शन, वो सारा पैसेज में से ही था, सारा आंसर पैसेज में ही था। इवन देखो, रिच का ऑपोजिट पुअर पैसेज में दिया हुआ है, टाइनी का ऑपोजिट ह्यूज पैसेज में ही दिया हुआ है, और व्हाइट वर्ड है तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाइट मतलब पोंछना, साफ करना, क्लीन करना, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक पैसेज आज कंप्लीट किया। Children, we will do one more passage, but not in today's video. We will do that in the next video. Okay? So do practice it, and we will meet in the next video. Thank you.